اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ ہمارے آفس میں آئے۔ آپ کو یہاں بلانے کا مقصد کرنگی پولیس کی ایک کامیابی کے متعلق آگاہ کرنا ہے۔ مورخہ 19/9/2023 کو تھانہ کرنگی انڈسٹریل ایریا میں مقدمہ الزام نمبر 1333/2023 بجرم دفعہ 109/406 پہ مسمی محمد موسیٰ خان کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں مدعی مقدمہ نے بتلایا کہ وہ عسکری سیکیورٹی کمپنی میں بحیثیت کو چیف کی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور بروز وقوع ڈرائیور رائے زہیب، سیکیورٹی گارڈ شیر احمد، ثاقب اور محمد باقر مختلف بینکوں سے کیش کلیکشن کرنے پر مامور تھے اور مختلف بینکوں سے مبلغ 6 کروڑ 35 لاکھ روپے لیے اور اپنی سیکیورٹی کمپنی کی گاڑی میں رکھے اور آخری وقت 4 بجے شام میزان بینک سیکٹر 16 نزد ڈرائیونگ لائسنس برانچ کرنگی انڈسٹریل ایریا پہنچے تو ڈرائیور زہیب اور گارڈ ثاقب علی کو اس نے گاڑی میں چھوڑا اور گارڈ شیر احمد بینک کے اندر مزید کیش لینے کے لیے چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ کچھ دیر کے بعد جب ہم کیش لے کر واپس آئے تو گاڑی اور ڈرائیور زہیب موجود نہیں تھے۔ باہر موجود گارڈ ثاقب علی سے معلومات کی تو اس نے بتایا کہ ڈرائیور زہیب نے مجھے ٹھنڈا پانی لینے بھیج دیا تھا۔ اسی اثناء میں ڈرائیور زہیب گاڑی اور کیش لے کر فرار ہو گیا۔ اس واقعے پر ڈی آئی جی ایسٹ زون کراچی کی خصوصی ہدایات پر میں نے یعنی ایس ایس پی ضلع کرنگی، میرے ساتھ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کرنگی، ہماری سربراہی میں آپریشن اور انویسٹیگیشن کے قابل افسران میرے ساتھ یہ ساری ٹیم موجود ہے۔ میں ان کو آپ کے سامنے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ ان قابل افسران پر مشتمل ایک ٹیم بما آئی ٹی اسٹاف تشکیل دی گئی، جس نے انتھک محنت، خفیہ انفارمیشن اور ٹیکنیکل بنیادوں پر پنجاب پولیس کی خصوصی معاونت اور وہاڑی پولیس کی مدد سے مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور ملزم زین، جو کہ مرکزی ملزم زہیب کا سگا بھائی ہے، کو گرفتار کر کے اس کی نشاندہی پر مبلغ 5 کروڑ 31 لاکھ روپے برآمد کر لیے، جبکہ دیگر ملزمان حامد، عطاء الرحمن اور عرفان کو ہری پور ہزارہ سے گرفتار کر کے 24 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ اس طرح 5 کروڑ 55 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے۔ مقدمہ میں دیگر ملوث مفرور ملزمان زہیب اور رشید کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جن کو انشاءاللہ عنقریب گرفتار کر لیا جائے گا۔ گرفتار شدہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ سی سی پی او صاحب کراچی نے اس کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے سی سی فرسٹ اور نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ تھینک یو۔ کیسے فرار ہوئے تھے پنجاب جب ان کے اس صوبے تک پہنچے تھے، اور ان کے ساتھ جو گرفتار ملزمان ہیں یہ مرکزی ملزمان ہیں یا ان کا صورتحال کی؟ جی بالکل، جو ہمارے سامنے ملزمان کھڑے ہیں یہ مرکزی ملزمان ہیں۔ ان میں جو ملزمان حامد، عطاء الرحمن اور زین ہیں یہ مرکزی ملزمان ہیں، اور عرفان جو موجود ہے یہ سہولت کار ہے۔ 3 ملزمان ہمارے مرکزی ملزمان ہیں اور 1 ملزم ہمارا سہولت کار ہے، اور یہاں سے یہ انہوں نے کیش وین کو لے کے کیش وین کا جو رقم تھی انہوں نے دوسری گاڑی میں ٹرانسفر کی اور یہاں سے اپنے سہولت کار کے ساتھ یہ پنجاب کی جانب فرار ہوئے۔ پنجاب میں انہوں نے زیادہ رقم پنجاب میں منتقل کی اور پھر باقی رقم کے ساتھ یہ
हरी पुर हज़ारा KPK में मुंतकिल हुए। तो ये दो जानिब इन्होंने रकम भी मुंतकिल की और टीम जो इनकी थी मुल्ज़मान की, ये भी दो जानिब यानी पंजाब और KPK में मुंतकिल हुए। ये समझे कि हम कानून की गिरफ्त से इस तरह दूर हो जाएंगे। सिंध में इन्होंने वारदात की और पंजाब और KPK में मुंतकिल हुए। हमने क्राइम से लेके हम क्रिमिनल तक पहुँचे हैं और हमने इस सिलसिले में सबसे पहले पंजाब पुलिस की मदद हासिल की। पंजाब पुलिस ने हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन किया। ये एक बहुत बड़ी वारदात थी जो शायद हम अकेले इसको ट्रेस नहीं कर सकते थे। इसमें पंजाब पुलिस का भी मैं इसमें आप लोगों के तवस्सुत से पंजाब पुलिस का शुक्रगुज़ार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब पुलिस की मदद से हमने ये काम किया है और इसमें हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे रेड्स किए, विहाड़ी में किए, झंग में किए और मुख्तलिफ़ और जगहों पे भी हमने किए। हर जगह पे उनका तामुन हासिल रहा और फिर KPK में हमने हरीपुर हज़ारा में इनको गिरफ़्तार किया। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह पहुँचे। नौशेरा फिरोज में क्या इन्होंने गाड़ी भी तब्दील की और इस रकम का मजीद इन्होंने क्या इस्तेमाल किया था जो नहीं मिली? देखें, इस पे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और दो मुल्ज़मान हमारे अभी जो ज़ुहैब और रशीद हैं वो अभी हमारे हाथ में आने हैं। इंशाल्लाह वो जल्द ही कानून के शिकंजे में होंगे। जैसे ही वो आते हैं तो बाकी रकम भी इंशाल्लाह हमारे पास ही होगी इंशाल्लाह। ये एक स्टोरी सामने आई थी कि जो मरकजी मुल्जिम है उसने कैश जो है किसी महबूबा की खातिर जो है चोरी किया था। इसमें कितनी सदाकत है? क्या इन लोगों ने भी जो है इसी तरीके की स्टोरी दी है या कुछ और मामला है? नहीं, बिल्कुल इस तरह की स्टोरी नहीं है। असल में सोशल मीडिया जो है वो शायद कई लोग ऐसे सोशल मीडिया पे पाए जाते हैं जो चीज़ों को रोमांटिसाइज़ करते हैं। इवन ज़ुहैब जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसने लव मैरिज की हुई है और सबसे पहले हम कराची में उसके इन लॉज पे पहुँचे थे। उसके इन लॉज यहाँ पे दो तलवार के इलाके में रहते हैं। तो उसने जो शादी की है वो भी भाग के शादी की है। तो उसकी अपनी शादी लव मैरिज है। तो उसकी कोई ऐसी महबूबा नहीं थी जिससे उसकी शादी ना हुई होती और उसको दिखाने के लिए उसने ये पैसे कमाए हों कि अब मैं पैसे वाला हूँ और मैं उससे शादी करूँ। उसकी अपनी शादी लव मैरिज की शादी है। हसन साहब, ये बता दीजिएगा, सितंबर के कुछ महीने में बाप बेटी और मियाँ बीवी समेत तकरीबन 6 अफराद जो है वो कोरंगी में ही कत्ल हुए थे। ट्रेस एक केस हुआ था जो मियाँ बीवी को ज़ाती दुश्मनी में मारा गया था। बाकी केसेस का क्या स्टेटस? अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी पुलिस ने इस महीने में काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। सबसे पहले तो आपने खुद ही एक ज़िक्र किया कि मियाँ बीवी जो यहाँ पे कत्ल हुए थे उनको हमने गिरफ़्तार किया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से उसमें मुल्ज़मान शामिल थे और आनर किलिंग का वो वाक़या था, उसमें हमने मुल्ज़िम गिरफ़्तार किया। इसके अलावा एक मशहूर वाक़या जिसमें सेक्टेरियन रंग भी दिया गया था, बाप बेटे का कत्ल था जिसमें गवर्नर साहब आए थे, जिसमें CCPO साहब आए थे और आपको पता है कि दुकान में उनको कत्ल किया गया था। लेकिन वो उस पर तफ्तीश हुई तो उसमें पता चला कि वो डकैती हुई थी और डकैती के दौरान उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोरंगी पुलिस ने, ऑपरेशन पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मिल के बड़ी जाँफिशानी से काम किया। उनके जो मुल्ज़िमान थे सारे अपने इंजाम को पहुँचे और लीगल उन पे जो भी कार्रवाई थी वो की और उसमें से एक मुल्ज़िम हलाक भी हुआ और बाकी सारे मुल्ज़िम अब कानून की गिरफ्त में आए। और इसमें जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो आपके सामने हैं। बाकी जितने भी केसेस हैं वो इंशाल्लाह हतमी मराइल में हैं और इंशाल्लाह जल्द ही वो भी आपके सामने होंगे। बाप बेटी वाला बता दीजिएगा, वो जो बेटी के साथ जो हुआ था उसका? जी, बाप बेटी वाला जो कत्ल है वो बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और सबसे पहली इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है वो वही केस है। उसको लेके हम संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं और उसको हम हर एस्पेक्ट से देख रहे हैं। उसको सिर्फ हम डकैती के हवाले से नहीं देख रहे, उसको हम दूसरे एंगल से भी देख रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द उस पे आपको इंशाल्लाह अच्छी खबर सुनाएंगे। सर ये बताइएगा, मुल्जिमान इतनी बड़ी रकम लेकर कराची से पंजाब चले गए, इनको कहीं नहीं रोका गया और ये ट्रैफिक किस तरीके से इन लोगों
अभी तक इन्होंने तकसीम पैसे की नहीं की थी, क्योंकि इनको पता था कि हम इनके पीछे लगे हुए हैं। इनके जहन पे खौफ था, और मुल्ज़िम जो भी होता है उस पे कानून का खौफ होता है। जब हम इनके पास पहुँचे, इन पे जब हमने छापा लगाया, तो अभी तक ये जो रकम थी, इसमें ज़्यादा रकम बोरों में बंद बिस्तरों के नीचे पड़ी हुई थी। तो अभी तक तकसीम के मराइल, ये जो रकम है तकसीम के मराइल में नहीं आई थी। और इसमें जो 3 मुल्ज़िमान हैं वो बाप और बेटे हैं, तो एक ही फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरे ख्याल में एक ही फैमिली में तो कोई तकसीम का इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो तो एक ही लोग हैं। तो बाकी जो हैं उनमें शायद इनका तकसीम का है, तो वो उस वक्त होती जब ये हमसे बच पाते। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम जल्द से जल्द हमने इनको कानून के दायरे में लेके आ गए। थैंक यू सो मच।